is the table which is relevant as on date, and just to just to make you aware about how to read it, there are two aspects associated with it. And all the esteemed member of this team. I heartily welcome all of you in this the seminar on the topic of peer review. The speaker for this seminar is C. Ayush Jain ji. First, I will introduce him to all of you. He is a founder of P2P Enabler Private Limited, empowering professionals. Ayush Jain is the founder of this unique startup, which has been conceptualized for assisting and empowering PU, means practice unit, in leading the flawless professional life and also in capacity building. He is also the special invitee member of Ethical Standard Board of the Institute of Chartered Accountant of India from 2022 to 2025. During the process of acquiring his certificate only, he became passionate and determined to bring qualitative improvement in delivery of service being made by the professionals. To pursue his goal, he started understanding the profession, public perception, functioning of the practice unit, and of the ICAI in the depth. He is devoting the day in and day out to sharpen his skill set for learning, teaching, coaching, problem solving, process improvement, use of technology, code of conduct, code of ethics, and all, knowing the profession in 360-degree. His flair to represent professional before various regulators, administrative bodies, government, and so on equips him with an extra mileage. Though this initiative, he aims to bring back the glory of the profession to its origin and help in bouncing to deserving level. So this is the brief introduction of the Ayush Jain sir. नाउ हम लोग अब शुरू करेंगे कि पीयर रिव्यू के बारे में आज हम लोगों को बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि पीयर रिव्यू जो है धीरे धीरे करके आईसीआई कंपलसरी करते चले जा रही है। और आज के समय में लेवल 2 भी अब ऑपरेटिव हो गया। पहले तो लेवल 1 तक को ही पीयर रिव्यू कराना पड़ता था, जो कि लिस्टेड कंपनी के ऑडिट जो भी सीए फर्म करती थे। लेकिन अब जो लेवल 2 में जो भी सीए फर्म जिनके में 5 या 5 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, या और भी उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उनको 1 जुलाई के बाद वो कोई भी ऑडिट साइन नहीं कर पाएंगे यदि उनका फर्म पीयर रिव्यूड नहीं है तो। और ऐसे भी पीयर रिव्यू जो है ऑडिट के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सीए फर्म के लिए जरूरी भी है। इसमें हम जो भी ऑडिट का काम करते हैं उसमें हमारे हमारे काम में क्वालिटी का जो एनालिसिस है वो पीयर रिव्यूअर के द्वारा किया जाता है कि हमने ऑल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो किया है कि नहीं, ऑडिट के लिए हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखा है कि नहीं। कल को यदि कोई रेगुलेटर के द्वारा हमारे ऑडिट पे कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो हम अपनी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, कि हमने ऑडिट को सही तरीके से किया और हमने प्रॉपर प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए, ऑडिट के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और ऑडिट के क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए आईसीआई ने पीयर रिव्यू का ये सिस्टम लेके आया है और इसे धीरे धीरे करके सभी फर्मों के लिए मैंडेटरी भी किया जा रहा है। तो आज दिस इज द हाई टाइम कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पीयर रिव्यू के पर्पज से, नॉट ओनली फॉर पीयर रिव्यू पर्पज, अपने ऑफिस के ऑडिट वर्क के क्वालिटी को सुधारने के लिए और उसे प्रॉपर तरीके से अकम्प्लिश करने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस किस तरह की डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए और उसमें आ रही कठिनाइयों को कैसे दूर करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे प्रोफेशनल, एक परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से इस अपने ऑडिट कार्य को पूरी तरह से कर सकें। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा और हैंडओवर करूंगा श्री आयुष जैन जी को, जो कि आगे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल। ओवर टू आयुष जी। Sir, thank you, KK Agarwal sir. Thank you, Sanjay sir, for allowing me to deliberate on this topic. And to begin with, as mentioned by Sanjay sir, I'd like to start with the basics, the mandate part. Sir, I'm not able to share the screen. Can you please enable? I hope my screen is visible. Yes, it is visible now. Okay. So, we'll primarily prefer will primarily prefer the ICI website directly,
so that it is not a it doesn't remain the document of a particular speaker, but any participant can directly refer to ICI website and can gather whatever information we are referring to. So simply this is the ICI peer review board website. I'll simply type ICI peer review board, and this is the first link, peer review mandate. So we'll first begin our discussion with this. This is the peer review mandate. This is the table which is relevant as on date. And just to uh, s- just to make you aware about how to read it, there are two aspects associated with it. Just refer this table, and in this table, these dates are to be referred at third level. Firstly, refer this part. This is the phase one. This is phase wise implementation. Phase one, two, three, and four. Then only one para is written. This is fine. In phases 2, 3, and 4, this is to be read. Firstly, refer this part before or. So और से पहले का part जो है, this is to be read in this manner. कि this, this. अगर आप इसमें फॉल कर रहे हो, so irrespective of the size of the firm, आपकी चाहे proprietorship भी है, irrespective of the size of the firm, peer review is mandatory on your firm. सेकेंडली, अगर ये जो और से पहले वाला क्राइटेरिया है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा, देन और से बाद वाला क्राइटेरिया नीड्स टू बी रेड. दिस इज हाउ इट इज टू बी रेड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इफ द फर्म, अच्छा पीयर रिव्यू में कुछ दो तीन चीजें बेसिक समझ लीजिए. पीयर रिव्यू इज कंडक्टेड एट FRN लेवल. सो पीयर रिव्यू FRN का, इसमें देयर इज एन ऑप्शन अलाउड बाय ICI कि आप ब्रांच और हेड ऑफिस का यू कैन हैव सेपरेट पीयर रिव्यूज. लेकिन वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस, और आप जो सर्टिफिकेट चाहते हो वो पहले ब्रांच लेवल का फिर HO लेवल का. जैसे आपका कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट्स होते हैं जिसमें ब्रांचेस के होते हैं फिर HO का होता है ना. लेकिन अल्टीमेटली पीयर रिव्यू इज ऑफ FR, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर. तो जो FRN का पीयर रिव्यू है, तो आपको जो भी अपनी एलिजिबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी कोई भी चीज अगर इसमें समझनी है, तो आप ये नहीं कह सकते डू नॉट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ मेंबर और हेड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच. अब अगर जमशेदपुर में संजय जी बैठे और उनकी मान लीजिए 4 ब्रांचेस हैं, जमशेदपुर में बैठ के सर ये नहीं कह सकते कि मेरे जमशेदपुर ऑफिस में नहीं है तो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है. अगर उनकी फर्म में FRN पे कोई दूसरा पार्टनर भी है जो लिस्टेड के ऑडिट कर रहा है, लिस्टेड, अब लिस्टेड में यहाँ पे बहुत कॉमन एरर्स जो पीछे देखी गई हैं. लिस्टेड डजंट ओनली इंक्लूड इक्विटी लिस्टेड ऑन NSE, ऐसा नहीं है. इवन अ लिस्टेड एंटिटी इंक्लूड्स हुज डेट सिक्योरिटीज डिबेंचर्स आर लिस्टेड. Even listed includes the entities which are listed on any stock exchange. चाहे वो आपका कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में रहा है. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कभी 20-30 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनीज लिस्ट हुई थी और आज वो उनकी लिस्टिंग सस्पेंडेड है. लेकिन फिर भी लिस्टिंग सस्पेंडेड है, लेकिन लिस्टेड तो है, अनलिस्ट नहीं हुई है. इसी तरह आपका अगर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज ऑल्सो लिस्टिंग अंडर सेबी. अगर आपका SME स्टॉक एक्सचेंज है तो भी इट इज कंसिडर्ड एज लिस्टेड. तो लिस्टिंग का जो जनरल जो ट्रेड पार्लेंस में मीनिंग आता है, काली वो मत समझिए. इसमें लिस्टिंग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ लिस्टिंग, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर ये जो हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, practice units, that is CFM, which propose to undertake statutory audit. अब यहाँ पर जो वर्ड है statutory audit, ये डिफाइन नहीं करा है. अब statutory audit का जो जनरल मीनिंग आप चाहे ये ले कि जो कंपनीज एक्ट का है वो मीनिंग जनरली सीए फॉर्म्स लेती हैं, बट इट इज नॉट अ नेसेसरी. Statutory audit is any audit under any statute. So even tax audit, which is under Income Tax Act, can be considered as a statute. So अब यहाँ डिफाइंड नहीं है, ये लिटिगेशन का टॉपिक है.
इसीलिए सेफर साइड यही है कि अगर आप टैक्स ऑडिट को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट मान लो यहाँ पर, डिफाइंड नहीं है। So, practice units which propose to undertake statutory audit of unlisted public companies having paid up capital not less than 500 crores or annual turnover not less than 1000 crores. या out in aggregate outstanding loan debenture deposit not less than 500 crores as on 31st March of immediately preceding year. As on date बात करें तो 31st March 20। इनके लिए देयर इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ हैविंग पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। इसका मीनिंग समझ लीजिए, यही लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज अभी यहाँ नीचे भी रिपीट हो रही है, सो आई विल एक्सप्लेन देयर। अगर ये वाला केस है तो आपका फेज 2 में है। अगर आपका ये वाला केस है कि पब्लिक कंपनीज का काम नहीं है आपके यहाँ, बट अगर आपके यहाँ कोई और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी एंटिटी है, द टर्म हियर इज एंटिटी। यहाँ टर्म है एंटिटी, यहाँ पे टर्म कंपनी नहीं है, एंटिटी है। सो आप समझिए, अगर कोई भी मान लीजिए टैक्स ऑडिट का भी केस अगर है और वो एंटिटी चाहे वो एलएलपी क्यों ना हो, या आपका विच हैव रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक या बैंक से अगर उसकी फंडिंग 50 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर आपका, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की टर्म है, ये डिफाइंड है कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 में, आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 1 ग्लॉसरी। वहां पे आपकी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की डेफिनेशन है। केवल आप प्लीज जनरल मीनिंग से इस डेफिनेशन मत समझिएगा, केवल जो डेफिनेशन वहां पर है, वहां पे अगर आपका क्लाइंट फॉल कर रहा है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में आ रहा है, और तभी ये वाला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। इनके लिए भी प्री रिक्विजिट है। और तीसरा फोर्थ फेज है, अगर विच प्रपोज टू अंडरटेक ऑडिट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आई, अब ये जो आपका ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑडिट्स भी कवर्ड है, इनके लिए भी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इज अ प्री रिक्विजिट। तो एक तो है ये कैटेगरी। सेकेंड इज आपका प्रैक्टिस यूनिट्स रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विसेज। अटेस्टेशन वर्ड है, ऑडिट नहीं है। आप एक एक वर्ड का यहाँ डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है। attestation, so even a certificate constitutes attestation. So practice units rendering attestation services and having 5 or more partners, 5 or more partners, similarly 4 or more partners, similarly 3 or more partners. इनके लिए there is a prerequisite of having peer review certificate before accepting any statutory audit. तो अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, 5 or more partners, आप कहेंगे हम पार्टनर्स हमारे तो अभी 4 हैं या 3 है या 2 है ना। अब आपने मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 2024 को या 31 मार्च 24 को आपकी फर्म में है 2 पार्टनर्स। अब जिस भी दिन आप 2 पार्टनर से ज्यादा करोगे, उस दिन के बाद से आप कोई भी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनलेस यू हैव अ वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 20 अप्रैल 24 आपने 2 पार्टनर से फर्म कर ली 4 पार्टनर की, तो अब 20 अप्रैल और उसके बाद आप एक भी ऑडिट साइन नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिट साइन नहीं कर सकते, जब तक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ना आ जाए। और आप नहीं कर सकते मतलब कोई भी पार्टनर एफआरएन लेवल पे साइन नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी चीज क्या है इसमें, प्री रिक्विजिट, ये वाली चीज समझ में आ गई, 5 और 4 पार्टनर समझ में आ गई। तो ये जो प्री रिक्विजिट है, इसमें एक मीनिंग और है कि बिफोर एक्सेप्टिंग, जिसका लास्ट 30 सितंबर को या जिसकी एक्सेप्टेंस आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी ऑडिट नहीं हुआ बट यू हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड एंड एक्सेप्टेंस, जैसे एजीएम में अपॉइंटमेंट होती है। सो लास्ट 30 सितंबर यू हैव ऑलरेडी गिवन योर एक्सेप्टेंस, ऑल एंगेजमेंट लेटर सब कुछ हो चुका है। उस एंगेजमेंट पे इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ लिटिगेशन। तो इसीलिए सेफर साइड यही है कि उनकी भी जो एंगेजमेंट्स आपकी पहले एक्सेप्ट हो चुकी हैं, इवन इन दोस केसेस, आप इमीडिएटली एटलीस्ट साइनिंग डेट से पहले, उस बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग डेट से पहले, यू मस्ट प्रिक्योर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। तो ये एक इसमें कंडीशंस हैं। और इसकी मैं डेट्स आपको बता दूं, ये जो डेट्स यहाँ लिखी हैं, ये 2 बार डेफर हुई हैं। अभी इसकी जो ये वाली डेट है 1 अप्रैल 23,
दिस डेट इज 30, ये डेट है 1 जुलाई 2024। जो ये डेट है 1 अप्रैल 24, ये हो गई है 1 जनवरी 25। ये अभी 1 अप्रैल 25 ही है। तो ये अभी रिसेंट डेफर हुई है ये दो डेट्स। एक इसमें ग्रेस पीरियड दिया है और इसमें एक वन टाइम एक्सटेंशन दी है। तो आपकी एक तरीके से 31 दिसंबर, जो कि कट ऑफ मानी जाती है सीएजी एम्पैनलमेंट्स के लिए, तो 1 जनवरी 25 विल बी कट ऑफ फॉर सीएजी एम्पैनलमेंट्स। वो उस दिन का स्टेटस लेते हैं, तो उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस केस में। और इस केस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 30 जून तक, 30 जून 2020। सो ये एक है जो मैंडेट है। आपको मैंडेट में कोई भी इशू है, सो वी कैन डिस्कस इमीडिएटली। सर इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा था कि बिफोर एक्सेप्टिंग एनी स्टेटरी ऑडिट, लेकिन उसमें लिटिगेशन है कि साइन भी कर सकते हैं कि नहीं यदि पहले एक्सेप्ट किया जा चुका है तो मेरा फर्म भी पीयर रिव्यू के अंडर में है और 30 जून तक का ही डेट है उसमें। तो मेरे पास जो आईसीआई से लेटर आया था उसमें तो यही लिखा हुआ था कि बिफोर साइनिंग एनी ऑडिट आपको पीयर रिव्यू करा लेना है। मतलब सर वो एक्चुअली क्या है, वो लेटर में यही लिख कर दे रहे हैं ताकि कंप्लायंस पूरी हो जाए। लेकिन हाँ जो हाँ। लीगल मैंडेट है वो ये है जो आपके सामने है। वो अच्छा। लेटर में, क्योंकि इंटेंट ऑफ द लॉ तो ये है कि आप मतलब जो पीछे बातचीत थी ना, हाँ जब हाँ ये की जो ओरिजिनल डेट थी ना सर 1 अप्रैल 23 की, ये हाँ एक बार डेफर होके हुई थी 1 जुलाई 23। हाँ तो उस दिन 30 जून 23 को काउंसिल की मीटिंग थी। उस हाँ। दिन ये बातचीत थी कि जिस एफआरएन का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, उनके सारे पार्टनर्स के यूडीआई पोर्टल ब्लॉक कर दिए। हम्म। तो वो यूडीआई ही नहीं जनरेट कर पाएंगे तो फिर ऑडिट कैसे कर ऑडिट पाएंगे? कैसे करेंगे? और तो वैसे अब इसी वजह से, ये डेट तो 30 जून 2024 हो चुका है, ये वाला सेकंड लेवल हाँ वाला जी हाँ जी, 30 जून 24 हो चुका। 24 हो चुका है, हाँ। तो अगर और कोई क्वेरीज नहीं है, सो वी आर प्रोसीडिंग अहेड। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है, वो मैंडेट, आफ्टर द मैंडेट, एक इसमें जो एक जो कॉमन मिथ्स हैं, या कहीं ना कहीं जिन सीए फर्म्स ने पहले पीयर रिव्यू करवाया है, या जो जिन्होंने अभी भी करवा रही हैं, या जिन्होंने पहले नहीं करवाया बट उन्हें पता है कि उन्होंने अपने सीनियर से सुना है, या कोई भी चीज है, तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। पीयर रिव्यू में एक जनरल मिथ या मिसकंसेप्शन है कि वो पीयर रिव्यूअर आता है, 10-12 फाइलें देखता है और उसके बेसिस पे वो अपना सर्टिफिकेट इशू कर देता है, रिपोर्ट इशू कर देता है और बोर्ड सर्टिफिकेट इशू कर देता है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इसे बहुत समराइज मैनर में ऐसा कह रहे हो, या पहले कहीं ना कहीं प्रैक्टिस इस टाइप की थी, लेकिन एज ऑन डेट पीयर रिव्यू इज अ सीरियस एंड सिंसियर प्रोसेस। इसमें लाइबिलिटी इम्प्लीकेशन फर्म और पीयर रिव्यूअर दोनों की है। और इसमें आप ये समझिए कि पीयर रिव्यू जो है ना, इसमें जो बार बार वर्ड्स हैं जो यहाँ पर बोल्ड करे हुए हैं, वो है सस्टेन क्वालिटी, टू इंश्योर एंड सस्टेन क्वालिटी, इंश्योरिंग एनहांसिंग द क्वालिटी। सो बेसिकली पीयर रिव्यू में आपका जो पार्ट है वो है ये। सो पीयर रिव्यू में क्या है, आप इस डेफिनेशन को एक बार समझ लीजिए। Peer review is an examination and review of systems and procedures। ये वर्ड है जो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, ये systems and procedures। So it's an examination and review of systems and procedures। आपकी फाइलों का रिव्यू नहीं हो रहा है, आपकी एफआरएन के जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, जो काम करने का आप लोगों का तरीका है, उस एफआरएन का जो काम करने का तरीका है। और मैं पीयर रिव्यू में जब भी बात करूंगा एफआरएन की। अगर आपके 5 ऑफिस हैं, पांचों ऑफिस में काम करने का जो तरीका है उसका रिव्यू है। सो इट्स अ रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। तो आपके यहाँ जो ऑडिट मैनुअल है, आपके यहाँ जो क्यूसी पॉलिसी है, आपके यहाँ जो एसओपीज हैं, आपके यहाँ जो ऑडिट के एसओपीज है कि पहले हमारे यहाँ ट्रायल आता है, ट्रायल के बाद हमारे यहाँ ट्रायल की टिकिंग होती है, ओपनिंग मैच होता है, ओपनिंग मैच होने के बाद हम फिर उसके बाद उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, रिटर्न्स मंगवाते हैं, डेटा मंगवाते हैं, फिर हम ऑफिस में टैली के डेटा से एक बार कंपेयर करते हैं, फिर क्वेरीज नोट करते हैं, फिर क्लाइंट विजिट होती है, फिर ऑब्जर्वेशन क्वेरी शीट बनती है, क्वेरी शीट डिस्कस होती है। ये जो भी आपके यहाँ प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का रिव्यू, तो आप ये समझे कि आपकी ऑडिट फाइल का रिव्यू है? नो, आपकी जो सिस्टम और प्रोसीजर है उसका रिव्यू है।
तो अगर किसी को आपके सिस्टम एंड प्रोसीजर का रिव्यू करना है, तो आप भी अगर कहीं ऑडिट करने जाते हैं और उनके सिस्टम एंड प्रोसीजर का रिव्यू करना है, सबसे पहले आप उनसे रिटर्न सिस्टम मांगते हैं कि आपके यहाँ प्रोसीजर क्या है। आप उनसे ओरली समझ लेते होंगे, लेकिन आईसीआई में पीयर रिव्यू में एसक्यूसी 1 के हिसाब से ये सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी इन रिटर्न फॉर्म। ये कहाँ लिखा और कहाँ मांगा गया मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये रिटर्न सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है एज पर एसक्यूसी 1 एंड इन कंप्लायंस विद योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो आपका एग्जामिनेशन रिव्यू सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का टू डिटरमाइन कि जो ये सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं फर्म के, एफआरएन के, दे आर देयर एंड एग्जिस्ट। कुछ कह रहे हैं क्या सर? जो ये सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऑडिट आ जाए अगर उस फर्म में, और अगर उस सिस्टम एंड प्रोसीजर से हो, सो इट विल इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस एज एनविसाज्ड बाय टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। अब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कौन से हुए? जो क्लाइंट के स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्लाइंट को फॉलो करने थे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, योर जो भी आपकी ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये क्लाइंट को फॉलो करने, सो दीज आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हुए? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हुए आपके एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसक्यूसी 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसआरई आपके रिव्यू स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, आपके एसआरएस, जो भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर योर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स आर योर कोड ऑफ एथिक्स। आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स इज योर एथिकल स्टैंडर्ड। तो जो आपके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसमें तीनों स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कैसे चेक हुई हर ऑडिट पे, वो उसका रिव्यू है आपका पीयर रिव्यू। एंड एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग AQMM, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये मैं अभी आपको एक बार दिखा दूंगा, एंड जितना टाइम परमिट करेगा उस हिसाब से वी कैन डिस्कस। तो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, अगर आपके केस में ये AQMM इज एप्लीकेबल, तो ये एंड एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपका आ गया सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल, या मान लीजिए कंपनीज एक्ट, जीएसटी लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, आपके जितने भी लॉज हैं, वो सारे आपके अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड वेदर द सेम वर्क कंसिस्टेंटली अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर। ये यहाँ पर दो टर्म्स है, पहली चीज पीरियड अंडर रिव्यू, दूसरा कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो पीरियड अंडर रिव्यू को ऐसा समझिए आप कि जो आप जिस दिन ऑन द डेट ऑन विच यू आर फाइलिंग एंड सबमिटिंग द पीयर रिव्यू एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए आज 22nd है, तो अगर आप आज अपनी पीयर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो आज से इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मीनिंग देयर बाय 31st March 24, 23, 22, मीनिंग देयर बाय 1st April 21 से 31st March 24, ये आपका हो गया पीरियड अंडर रिव्यू। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग अटेस्टेशन रिव्यू होंगे, नो। इसका ये मीनिंग है कि इन 3 सालों में जो भी आपने अटेस्टेशन की, जिनकी साइनिंग डेट वर फॉलोइंग इन दीज 3 years, दे आर सब्जेक्ट टू पे। क्या मतलब है कि इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, किसी को कोई डिस्कशन कोई क्वेरी है प्लीज रेज। तो अगर किसी का, मान लीजिए कि आपने जो 10th April 2021 को यूटीएन जनरेट करा, 10th April 2021, लेकिन उसकी साइनिंग डेट थी 25th March 2021, तो वो यूडीआईएन आपका पीयर रिव्यू में नहीं, वो पीयर रिव्यू में नहीं है। सिमिलरली आपने, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, सिमिलरली आपने अगर अभी 15th April 2024 को अगर यूडीआईएन जनरेट करा फॉर द ईयर, फॉर द डेट की साइनिंग डेट, उस डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन, उस सर्टिफिकेट की साइनिंग डेट थी 25 March 2024, वो पीयर रिव्यू में आ जाएगा। यहां पर सारा दामदार है
आपका साइनिंग डेट, जो साइनिंग डेट अगर इन 3 साल में फॉल कर रही है, ऑल दोज यूडियंस, ऑल दोज अटेस्टेशंस, ऑल दोज असाइनमेंट्स आर सब्जेक्ट टू। अब इसमें एक मीनिंग ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपने 22-23 की बैलेंस शीट साइन करी होगी, मान लीजिए 3 सितंबर 2023 को, वो पीयर रिव्यू में आ जाएगी। लेकिन 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट आपने साइन ही नहीं करी होगी अभी तक, या करोगे तो 31 मार्च 24 के बाद करोगे, उससे पहले तो कर नहीं सकते। तो 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट पीयर रिव्यू में नहीं है। तो अगर आप आज अप्लाई, तो और आपकी 20-21 की बैलेंस शीट जो आपने 3 सितंबर 21 को साइन करी होगी वो आ जाएगी। तो बेसिकली 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 24, इन 3 सालों में जो भी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉल करी थी, तो ऑल दोस यूडियंस आर सब्जेक्ट टू पीयर। तो इसका सबसे इजी तरीका है यूडियन पोर्टल पे जाके सभी पार्टनर्स का इस पीरियड में 1 अप्रैल 21 से 31 मई 24, आप आज अप्लाई करें तो आज की तारीख तक, अदरवाइज 30th मई 24, क्योंकि 60 दिन की वैलिडिटी, 60 दिन पीछे आप जा सकते हो यूडियन जनरेट करने। तो तब तक के यूडियंस को एक्सपोर्ट कीजिए। उसमें डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वाले जो एक कॉलम आता है, जब यूडियन पोर्टल से एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सेल फाइल में डेट ऑफ डॉक्यूमेंट का कॉलम सेल आता है, उस पे फिल्टर लगाइए। और उस पे फिल्टर लगा के 1 अप्रैल 21 से पहले के जितनी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उन्हें, वो वाले यूडियन हटा दीजिए। 1 अप्रैल 24 के बाद की जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उस यूडियन को हटा दीजिए, और जो रिवोक्ड यूडियन है वो हटा। जो बचे हुए यूडियन है, ऑल दीज यूडियंस आर सब्जेक्ट टू पीयर। इसमें कहीं ना कहीं जो सीएस को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमारे सर्टिफिकेट्स भी आएंगे जी, हाँ जी सर्टिफिकेट्स भी आएंगे, आपके सारे टैक्स ऑडिट आएंगे, हर पार्टनर का सारे टैक्स ऑडिट, सारे सर्टिफिकेट्स, सारे कॉन्करेंट ऑडिट, सारे इंटरनल ऑडिट, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, आपका जीएसटी ऑडिट, हर टाइप का सर्टिफिकेट, आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल्स, कंपाइलेशन नहीं आता, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल्स आता है, आपके रिव्यू एंगेजमेंट्स आती हैं। ये सभी असाइनमेंट्स हर पार्टनर के, जो इन 3 सालों में पार्टनर था, चाहे एक दिन के लिए भी था, आज नहीं है वो पार्टनर, तो भी पीयर रिव्यू में कवर होगा। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनर था जिसकी अब डेथ हो गई है, तो भी उसका पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। कोई पार्टनर था जो एज ऑन डेट आपकी फर्म में पार्टनर नहीं है, तो भी आपको सारी डिटेल्स देनी ही पड़ेंगी, सारी डिटेल्स इंस्टीट्यूट में देनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं। और ये प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा है सीए फर्म्स को, क्योंकि जो पार्टनर है सारी फाइलें सारी चीजें उसके पास रहती है, प्रैक्टिकली तो आज तक ऐसे ही होता है। लेकिन एसक्यूसी 1 की 1 अप्रैल 2009 से ये रिक्वायरमेंट है कि एचओ लेवल पे वो डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी मेंटेन। केवल एनफोर्समेंट आज हो रही है, लॉ सारे पुराने हैं, लेकिन एनफोर्समेंट आज हो रही है। और यही चैलेंज आ रहा है सीए फर्म्स को कि जो भी पार्टनर छोड़कर चले गए उनका भी डेटा देना ही पड़ेगा। और इसमें पूरी रिकंसिलेशन आती है, कितने यूडियन जनरेट हुए और कितने आपने उसमें लिखे, ये पीयर रिव्यूअर देखता ही देखता है। क्योंकि ये उसे बाद में जब आईसीआईसी क्वेरीज आती है उसमें राइटिंग में कंफर्म करके देना पड़ता है, हाँ जी मैंने रिकंसिलेशन कर लिया, हाँ जी मैंने देखा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और इसमें केवल दो दो एक्सेप्शन है, कौन से असाइनमेंट कवर नहीं होते, कुछ तो यहाँ पर लिखे हैं, पर जिसमें यूडियन एक बार को जनरेट होता है पर वो कवर नहीं होते, वो है एक एंगेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस की, और एक है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज आपकी जो यहाँ पर हमने टर्म छोड़ी थी, कंसिस्टेंटली अप्लाई, उसका मीनिंग यही है। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने तो तीसरे साल में ऑडिट मैनेज, और अब तो देखो जी अब मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो पीयर रिव्यूअर साहब यू कैन नॉट मेक अ रिक्वेस्ट कि भाई पहले 2 साल ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तब कोविड से आए आए थे, अब तीसरे साल में सब ठीक है तो आप जी यही देख। नहीं सर, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कहीं मिस नहीं हो सकती।
एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड मीनिंग देयर बाय आपका पहले दूसरे तीसरे तीनों सालों में उसी तरीके के प्रोसीजर्स होने चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तीनों सालों के ही दिखाने होंगे। आपका पीयर रिव्यू का जो सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं एक बार आपको दिखा दूंगा भी, तीनों सालों का एक एक मिनिमम सैंपल सेलेक्ट। और पीयर रिव्यू में जो मैं आपसे कह रहा था, खाली फाइल रिव्यू नहीं होती है, आपके जो एचआर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के डॉक्यूमेंट, रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंट्स, एचआर की पॉलिसीज वो भी रिव्यू होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपने स्टाफ को दिए वो भी रिव्यू होते हैं, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी पीयर रिव्यू का पार्ट। आपकी जो मिनिमम फीस वाला स्ट्रक्चर है वो भी पीयर रिव्यू का पार्ट है। आपकी फर्म का अटेंडेंस रजिस्टर, वर्क डायरी, स्टाइपेंड, ये सभी पीयर रिव्यू का पार्ट। अब वो पीयर रिव्यू कितना देखे वो उसकी कॉल है, लेकिन ये सब पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है। जो पीयर रिव्यू की रिपोर्ट है मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें सब, क्योंकि क्वेश्चन एयर में सब। तो अगर किसी की स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में कोई क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द प्रोसीजर ऑफ पीयर। कोई है या बस आई एम द ओनली वन हु इज स्पीकिंग? नहीं सर, नो डाउट, प्लीज प्रोसीड। सर 1 मिनट। पीरियड सर, आपने कहा कौन सा पीरियड बोला, कितने साल तक कवर करेगा पीयर रिव्यू एज सर ऑफ थ्री डेट? इयर्स 3 इयर्स। ओके, एज ऑफ डेट हम एप्लीकेशन करेंगे, फिर 3 इयर्स का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। हाँ जी सर, जो भी आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब एप्लीकेबल कब हो जाता है पीयर रिव्यू सर? सर वो तो मैंडेटरी क्राइटेरिया था ना जो मैंने आपको हाँ। भी दिखाया। अगर आप इस केस में देखिए, आप पीयर रिव्यू वॉलंटरी भी करा सकते हो, हम्म। और मैंडेटरी है तो फिर तो करवाना ही है। आप लेकिन वॉलंटरी भी करा सकते हो। कई सीए फर्म्स इसे एज अ ब्रांड बिल्डिंग टूल ले रही हैं। कई सीए फर्म्स को क्योंकि पता है कि लिस्टेड हम ही अपने क्लाइंट्स को बनवा रहे हैं, या लिस्टेड का काम आ सकता है, या वो बड़ी एंटिटीज का काम पिच कर रही हैं, तो उस टाइम पे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी बन जाता है, चाहे लीगली रिक्वायर्ड ना हो। तो कुछ फर्म्स वॉलंटरी करा रही है और बाकी मैंडेटरी, तो ये क्राइटेरिया। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है, जी, कौन सी ऑफिस? हेलो, पब्लिक जब सेक्टर तो बैठे बैंक। नहीं है क्या? मेरा आवाज में मैडम कोई क्लास क्रैश है, हो रहा है। मालूम ना? सर राकेश जी को म्यूट कीजिएगा। सर हाँ जी, नहीं सुन। 1 अप्रैल 2025 से हाँ जी। मतलब हमने इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑडिट किया, हम्म। ब्रांच ब्रांच ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ब्रांच। हाँ। हम्म। तो हमको अभी अप्लाई नहीं करना है, 1/4/2025 के बाद अप्लाई करना है सर? 1025 से पहले सर, प्री रिक्विजिट फॉर एक्सेप्टेंस, ओके। प्री रिक्विजिट है। तो जो यहाँ डेट्स दी गई हैं, जो डेफर्ड डेट्स हैं, आगे सही वाली डेट है 30 जून 24, 1 जनवरी 24, 1 अप्रैल 25, हाँ ये हाँ हाँ। 1 जनवरी 25, सॉरी, 1 जुलाई 24, 1 जनवरी 25, 1 अप्रैल 25, इस तारीख को सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे सर। अच्छा, समझ गया। मतलब हमने इस बार कर लिया है तो फिर अगले बार अगर हमको नहीं करना है ऑडिट तो फिर भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपको मान लीजिए अगले मार्च में ऑडिट एक्सेप्ट करना है बैंक ब्रांच का जो हाँ आएगा, हाँ तो हाँ आपको 31 मार्च से पहले हाँ। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, ये तो टाइम कंज्यूमिंग जॉब भी है, 2-3 महीना लगेगा पीयर रिव्यू का बनाने सर के। मिनिमम मिनिमम हाँ हाँ। तैयारी में ही टाइम लग जाता है। इंस्टीट्यूट तो चलो फिर भी 1-2 महीने में खत्म करवा देगा, पीयर रिव्यू की पूरी टाइमलाइन ही करीबन 20 दिन की है, ठीक है ना। फिर हम्म। इंस्टीट्यूट में अगर कम्युनिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में टाइम लग गया तो आप 1 से 1.5 महीना मान लो। और आपकी तैयारी में, हम्म तैयारी में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो ब्रॉडली 2 से 3 महीने का टाइमलाइन मान लो। हम्म। बराबर। और एप्लीकेशन सीधा इंस्टीट्यूट पर करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी प्रोसीजर पर आ रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक प्रोसीजर में मैं ठीक एक ठीक। एक स्टेप अभी समझ। ठीक है सर, ठीक ठीक। थैंक यू वेरी मच। तो प्रोसीजर को समझने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका है, ये आपका पीयर रिव्यू बोर्ड की वेबसाइट पे, दिस इज द इलस्ट्रेटिव टाइमलाइन। सबसे अच्छा तरीका है ये इलस्ट्रेटिव टाइमलाइन। कुछ कह रहे हैं सर? Illustrative timeline is the best mechanism to understand the procedure. ये आप एक बार, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इससे मैच भी चाहे कर लीजिएगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक 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 स्टेज में, एक स्ट्रेच में एक बार आप प्रोसीजर समझ। तो प्रोसीजर में क्या है कि
सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप, अगर किसी ने पहले पीयर रिव्यू करवा रखा है तो वो सब अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से पूरा प्रोसीजर चेंज हो चुका है। पहले क्या था? पहले था कि आप 2 पेज की एप्लीकेशन यू यूज टू सबमिट टू आईसीआई, जिसमें आप बस ये लिखते थे हमारे कितने टैक्स ऑडिटर और ऐसे ऐसे, और आप आईसीआई में सम एप्लीकेशन दे देते। फिर उसके बाद वो पीयर रिव्यूअर अलॉट करता था, और जो डिटेल्ड क्वेश्चनियर है वो आप पीयर रिव्यूअर को देते थे, और पीयर रिव्यूअर सब कुछ करने के बाद लास्ट में आईसीआई को अपनी एप्लीकेशन, अपनी रिपोर्ट के साथ क्वेश्चनियर सबमिट करता। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चनियर में कोई चेंज होना है, जो आपने गलत लिखा है, पीयर रिव्यूअर ने बताया कि आपने गलत लिखा है, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, इसे ठीक करवा, कोई भी एरर है, तो वो आपकी कोई भी चीज है वो इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं चलता। वो चलती थी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, पता, जब पीयर रिव्यूअर सब ठीक करवा चुका होता था, या आपने ठीक कर लिया और आपकी सीधा सबमिशन आईसीआई को लास्ट में होता। अब ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा चेंज है 1 अक्टूबर 22 से। आपका सब बिगेस्ट चेंजेस कि अब आपका पहली ही स्टेज पे आपका जो फॉर्म 1 है, जो एप्लीकेशन है, कंप्लीट एप्लीकेशन, वो आपका फर्स्ट स्टेज पर ही पूरी सबमिट हो जाती है। कुछ कह रहे हैं सर? आपकी पहली ही स्टेज पे कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। राकेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? बेंच भी है पीछे लगा हुआ है। राकेश जी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, कुछ कह रहे हैं क्या? शायद उनका आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है सर। ये जो आपकी एप्लीकेशन है 50 पेजेस की, ये आपकी सबसे पहले स्टेज पर ही इंस्टीट्यूट में सबमिट हो जाती है, और अब आपने इसमें जो सबमिशंस कर रहे हैं सब कर दिया, अब आपके हाथ बंद, आप सब कुछ दे चुके हो इंस्टीट्यूट में, सब बता चुके हो ये 50 पेजेस प्लस आपकी कंप्लीट यूडिया एंड वाइज क्लाइंट, ये पूरी एप्लीकेशन सबसे पहली स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट में सबमिट होनी होती है। एक चीज समझ लीजिए, द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर पीयर रिव्यू इज डिजिटल एंड वर्चुअल। इंस्टीट्यूट से जितना आपका इंटरेक्शन है वो सारा आपका वर्चुअल या डिजिटल है। कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट में फिजिकल सबमिट नहीं होता। तो ये एप्लीकेशन भी आपको फिल करके, ये मैंने पीडीएफ खोली है सारी एप्लीकेशंस के, सारे फॉर्म्स के, यहाँ पर वर्ड फाइल, एडिटेबल वर्ड फाइल्स गिवन है, आप आराम से उसे अपना डाउनलोड करके अपना फिल की करके साइंड स्कैन्ड कॉपी, डीएससी लगा रहे तो बात अलग है, वरना फिजिकल निकाल के साइन करके फर्म की स्टैंप लगा के वो आपको इंस्टीट्यूट में मेल करनी। फर्म की स्टैंप तो लगेगी, एनी केस चाहे आप डीएससी लगाओ तो भी, वो आपको फिर इंस्टीट्यूट में मेल करनी। तो सर एक पहला स्टेप, हाँ जी क्या कह रहे हैं? वो आप ये जो ओपन किया था ना फॉर्म एप्लीकेशन वाला, वो हम्म। आप यहाँ पे जो सब ऑप्शन दिए गए हैं पॉइंट नंबर 2 में, एज इट इज मैंडेटरी बाय आईसीआई, नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 2, फिर वॉलंटरी एज स्पेशल केस रिव्यू इनिशिएटेड बाय द बोर्ड न्यू यूनिट एज पर डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो जो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट वाला जो है वो वॉलंटरी में जाएगा या मैंडेटरी कराएंगे हम लोग? मैंडेटरी में जाएगा सर, हाँ, मैंडेट का पार्ट है ना। अच्छा मैंडेटरी का, ठीक। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज आप ये कंप्लीट लिस्ट विद योर क्लाइंट लिस्ट आपको साइन करके स्टैम्प कॉपी, स्कैन कॉपी आपको इंस्टीट्यूट में मेल करनी है। सारे कम्युनिकेशंस आपके जो इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशंस हैं वो एक ही ईमेल आईडी से चलते हैं, कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं है, वो है ये। दिस इज द ईमेल आईडी जिसपे आपको ये अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक है, इनिशिएशन के लिए। ये आपके सेक्रेटरी हैं, वहां पे सीएस की टीम है जो सारी हैंडलिंग करती है। पूरी कंट्री के पीयर रिव्यू केवल एक ऑफिस से होते हैं, वो है जिसका एड्रेस ये रहा। आपको इस एड्रेस का कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि फिजिकल वहां पे कोई जाता नहीं है, जाने का काम ही नहीं पड़ता, सारी चीजें वर्चुअली। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना पीयर रिव्यू की एप्लीकेशन मेल करनी है। एप्लीकेशन मेल करने के बाद सेकेंड स्टेप इज कि वहां से इंस्टीट्यूट से 3 जनों का पैनल का नाम आता है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम आता है एज अ पैनल। आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको समझ बैठे, मान लो कोई समझ नहीं बैठा, आस्क फॉर अ फ्रेश पैनल। उसके बाद आपने एक सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट को मेल, रिटर्न मेल से कंफर्म कर दिया कि वी विश टू एंगेज दिस एज आवर फर्म्स पीयर। उसके बाद इंस्टीट्यूट एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है, सब कुछ मेल पे, एक ईमेल भेजता है, अपॉइंटमेंट ईमेल, जिसमें
में वो पीयर रिव्यूअर को भेजता है और आपको सीसी में रखता है, फर्म को सीसी में रखता है कि आपकी फर्म को आपको ऐसे ऐसे इस फर्म ने अपॉइंट करा है, काइंडली गिव योर कंसेंट और ये सब। फिर वो पीयर रिव्यूअर अगर वो पीयर रिव्यू करना चाहता है तो वो पीयर रिव्यूअर इस फॉर्मेट में कंसेंट देता है, इस फॉर्मेट में कंसेंट देता है। ये रहे फॉर्मेट्स मैं आपको दिखा, वैसे तो उसमें अटैचमेंट में भी होते हैं, बट स्टिल उस ईमेल के अटैचमेंट में भी होते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट दिखाया तो ये है फॉर्म 2। इस फॉर्मेट में वो अपनी पीयर रिव्यू की एप्लीकेशन, वो कंसेंट और एक्सेप्टेंस देता है। इसके बाद फर्म को जो फॉर्म 1 इंस्टीट्यूट को भेजा था, वो इंस्टीट्यूट ऑफ द पीयर रिव्यूअर को नहीं भेजा, वो उसे पीयर रिव्यूअर को मेल कर, उस मेल को अब इस दिन, जिस दिन वो फर्म ने वो पीयर रिव्यूअर को ये फॉर्म 1 एप्लीकेशन मेल कर, उस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पीयर रिव्यू प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अदरवाइज एक भी दिन का डिले आपको एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट से राइटिंग में रीजन लिखकर देनी पड़ती है, इवन फॉर अ सिंगल डेट। और पूरा पीयर रिव्यू प्रोसीजर का मतलब है पूरा, यानी कि रिपोर्ट सबमिशन पीयर रिव्यूअर की आपकी इस डेट, जिस दिन आपने क्वेश्चन फॉर्म 1 उसे भेजा, उससे विद इन 15 डेज पीयर रिव्यूअर की रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है, उसकी विजिट, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसकी फीस की पेमेंट, एवरीथिंग। ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है। इसके बाद जब पीयर रिव्यूअर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट, पीयर रिव्यूअर को आपने अपना क्वेश्चनर एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर पीयर रिव्यूअर का नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो आपको अपना एक, उसको देख के, क्वेश्चनर को देख के अपनी रिक्वायरमेंट्स, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपसे डिमांड करे मेल पे। वो मांगने का, रिक्वायरमेंट मांगने का फॉर्मेट ये रहा। सभी फॉर्मेट्स यहाँ पे हर कम्युनिकेशन के लेवल के आईसीआई ने दे रखे हैं, आप इसी फॉर्मेट को यूज कीजिए। ये रहा फॉर्म 6, फॉर्मेट फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें नॉर्मली पीयर रिव्यूअर दो चीजें मांगता है, यूडीएन वाइज क्लाइंट लिस्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लाइंट लिस्ट इंस्टीट्यूट में दे चुके हो, उसका फॉर्मेट मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक है यूडीएन वाइज, फीस वाइज क्लाइंट लिस्ट। फिर दूसरी चीज वो मांगता है आपकी फर्म की क्यूसी मैनुअल या ऑडिट, रिटर्न ऑडिट मैनुअल की कॉपी। ये दो चीजें नॉर्मली सीए से मांगी जाती है, पीयर रिव्यूअर मांगता है। इसके बाद पीयर रिव्यूअर एक सैंपल क्रिएट करता है आपकी क्लाइंट लिस्ट में से, मिनिमम 10 इज द सैंपल साइज। वो 10 का सैंपल क्रिएट करता है और वो 10 का सैंपल वो मेल करता है सीधा सीएफएम को। अब पिक्चर से इंस्टीट्यूट हट चुका है, सो आईसीआई हैज नाउ विथड्रॉन फ्रॉम द पिक्चर। अब सीधी सीधी कहानी चल रही है प्रैक्टिस यूनिट और पीयर रिव्यूअर के बीच। तो पीयर रिव्यूअर उसे मिनिमम 10 का सैंपल निकाल के वो उनसे मेल कर देता है। उसके बाद फर्म को अपनी, और मेल करने का फॉर्मेट ये रहा, नोटिस बाय पीयर रिव्यूअर फॉर विजिटिंग द ऑफिस ऑफ प्रैक्टिस। तो वो मेल करता है और मेल करने में वो पूरा बताता है कि मैं इस दिन आऊंगा। आपका पीयर रिव्यू वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से हो सकता है, जैसा आपको सूट करे दोनों, और जैसा आपको म्यूचुअली एग्री करो। तो अभी मान लीजिए आपकी फर्म वडोदरा में है, ठीक है, और आप पीयर रिव्यूअर आपने अपॉइंट करा पुणे का, तो आप चाहो तो वो पुणे का, अगर पुणे के पीयर रिव्यूअर को कंफर्ट है तो पुणे का पीयर रिव्यूअर वर्चुअली यानी टेस्ट या किसी भी मॉडल से कर सकता है। अगर उसे नहीं है कंफर्ट तो वो फिजिकली आपके ऑफिस आके कर सकता है, जैसा आपको। लोकल भी मिलते हैं ना, लोकल भी मैंने पहले भी देखे हैं हाँ, कि है लोकल। भी है। तो फॉर्म तो लिस्ट ऑफ फॉर्म दे देता है, फिर अपने लोकल ही कोई बोल सकते हैं किसी को भी। कोई भी, बस ये है कि आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, पीयर रिव्यूअर का नाम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, वो ये रहा जो फॉर्म 1 है। हाँ। इसमें जो यहाँ पर है आपका, मैं दिखा, आपको विद इन सिटी चाहिए या आउटसाइड सिटी चाहिए, वो ऑप्शन होता है उसमें सिलेक्ट करने के हाँ हम्म। जी, ये रहा वो ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। यहाँ पर हाँ। आपको लिखना होता है कि आपको पीयर रिव्यूअर की लोकेशन क्या चाहिए, सेम सिटी, आउटसाइड सिटी, कोई भी ऑप्शन। और यहाँ पर मान लीजिए आप प्रेफर्ड सिटी लिख सकते हो, कहीं भी हिंदुस्तान की जगह डाल दो, पीयर रिव्यूअर बोर्ड विल प्रोवाइड। और सर पीयर रिव्यूअर का लिस्ट मिलता है कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ? नहीं। नहीं, वो वो पैनल जो है ना पीयर रिव्यूअर का, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। है। वो तो आप बस यहाँ पे लोकेशन डाल दो, वो 3 नाम अपना आप दे देगा इसमें। अच्छा।
ठीक है। फिर इसके बाद जब उन्होंने पीयर रिव्यूअर ने वो उसे आपकी क्यूसी मैनुअल या ऑडिट मैनुअल की कॉपी मिल गई, यूडीएन वाइज पीस वाइज आपकी क्लाइंट लिस्ट मिल गई, उसके बाद वो 10 से मिनिमम 10 का सैंपल देता है। 10 का सैंपल देने के बाद वो कहता है मैं इस दिन आऊंगा या वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, जैसा भी आपका म्यूचुअली एग्री हुआ। उसके बाद वो आपके क्वेश्चनियर का एक एक आंसर, पूरे क्वेश्चनियर का एक एक क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है, प्लस ये है पीयर रिव्यूअर की रिपोर्ट। ये मॉडल फाइनल रिपोर्ट है, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें केवल जहां पे फिल इन द ब्लैंक है उस ब्लैंक में फिल करना और कुछ। ये है मॉडल, ये जैसे लेटर नंबर ये हो गया, जो अपॉइंटमेंट की ईमेल आई थी उस ईमेल की डेट लिखनी है, केवल जो फिल इन द ब्लैंक है वो फिल करना और कुछ नहीं करना मॉडल फाइनल रिपोर्ट, कुछ नहीं करना। लेकिन जो पीयर रिव्यू को करना होता है वो करना होता है एनेक्जर 1, एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3। एनेक्जर 3 है आपका AQMM का, तो अगर AQMM आप पे एप्लीकेबल है तो एनेक्जर 3, वरना एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ब्रॉडली ब्रॉडली दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बार समझ में आए कि जब वो पीयर रिव्यू कर रहा है तो उसे पीयर रिव्यू में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, मैंने ब्रॉडली तो आपको बता दिया। लेकिन वो जो 10 का सैंपल पिक कर रहा है, खाली वो फाइल रिव्यू नहीं करनी है, उसे बहुत चीजें देखनी होती है। एक तो आपके क्वेश्चन के एक एक आंसर का सपोर्टिंग, दूसरा ये चीज है कि आपके यहाँ ये पॉलिसीज और ये जनरल कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस में थे नहीं थे, इंडिपेंडेंस के, आउटसाइड कंसल्टेशन के, इनके जनरल कंट्रोल्स की पॉलिसीज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ। देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं कोई भी सीए आउटसाइड कंसल्टेशन लेता ही है, पीयर ग्रुप में अपने जान पहचान, जैसे आप लोग का ये ग्रुप बना हुआ है कि ये इतने सीए साथ काम कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से कंसल्टेशन तो लेते ही हैं। उसकी पॉलिसी होना मैंडेट, लेकिन उसका आपने उस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट में कंसल्टेशन ली थी या नहीं ली थी, इस बात से कोई फर्क नहीं। फर्म में आउटसाइड कंसल्टेशन की पॉलिसी होना SQC 1 की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी जो रिटर्न पॉलिसी उसमें लिखा होना चाहिए। इसी तरह आपके यहाँ रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक थे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में थे आपके यहाँ। देखिए, ये सारी चीजें थी, आपने जो ऑडिट्स करे उसमें इस टाइप की चेकलिस्ट थी, प्रोसीजर्स थे, जिसमें आपके ICAI की गाइडेंस नोट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चेकलिस्ट थी ना उन ऑडिट्स में, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है वो एज पर लॉ है ना। अब यहाँ पर आपकी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो अभी इस साल से और पिछले साल से इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट निकाला है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का फॉर्मेट ICAI वाला होना चाहिए। तो ये तो कंपलसरी नहीं था ना। सर कंपल्सरी नहीं है, ओ, इट इज इन द लाइंस ऑफ Schedule 3। और क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग डिसिप्लिनरी केसेस देखते हैं, तो हाँ। क्या होता है सर कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, हम्म वो सबसे पहले क्या मीनिंग निकालती है, इंस्टीट्यूट ने बोला है ना, तो इनके मेंबर को ऐसा करना चाहिए था। अब ये मैटर ऑफ लिटिगेशन है कि इंस्टीट्यूट ने उसे रिकमेंडेटरी कर रखा है, हम्म सजेस्टेड कर रखा है, ये आपके और इंस्टीट्यूट के बीच की बात है। थर्ड हम्म पार्टी तो डिसिप्लिनरी केस डाल देगी। हमारे हम्म पास कई CAG और इनके केसेस आए, एक बार केस चल जाता है ना सर, लीगल कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है और मेंटल बॉदरेशन स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट तो इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट में सर लिखा हुआ है ये बात, नहीं इट नहीं, इज लिखा हुआ है, इन नेचर। लिखा हुआ है, मैं जब तक मना वो थोड़ी बजट कर में रहा हूँ। नहीं देंगे तब तक हम उसको मैंडेटरी नहीं करेंगे उस फॉर्मेट को, नॉन नहीं नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ वो रिकमेंडेटरी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के एंगल से कहीं ना कहीं वो उसे मैंडेटरी लेते हैं। तो प्रेफर कीजिए कि जो उसका ऊपर से डिजाइन है वो वैसा ही लगे जैसा इंस्टीट्यूट, चाहे अंदर आप चीजें चेंज कर दें, लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं लगना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट ने बोला है वैसा नहीं। तो करंट ईयर से सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल हो गया है, कम मैंडेटरी है कि अभी भी रिकमेंडरी है? ये अभी भी रिकमेंडेटरी है ये। असेसमेंट ईयर 24-25 में रिकमेंडेटरी है ना? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए जो फॉर्मेट लाया गया है हाँ। वो अभी तक तो रिकमेंडेटरी है। सर, आवाज आ रहा है, तासिफ जी आपका आवाज आ रहा है। हाँ, सॉरी सर। तो संजय जी क्या बोल रहे गाइडेंस थे? नोट जो आया है ना वो अभी तक रिकमेंडेटरी है वो।
हाँ तो नॉन असेसमेंट कॉर्पोरेट एंटिटी वाले तो असेसमेंट 24-25 में भी वो रिकमेंडेटरी है। मैंडेटरी है। हाँ हाँ तो भाई हम लोग वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ट्रेडिशनल वे से चला सकते हैं। हाँ, परंतु चला उसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हाँ प्रीवियस फिगर जो नहीं देते वो देना मैंडेटरी है, क्योंकि हाँ एज पर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग जो है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर हाँ। उसमें दिया है कि प्रीवियस ईयर फिगर जरूर होना चाहिए, फॉर्मेट कोई भी यूज करिए। अच्छा प्रीवियस ईयर कंपलसरी है कंपलसरी शुरू से है, आज से नहीं। सबके हाँ, लिए? सबके लिए है, चाहे कंपनी का हो चाहे नॉन कंपनी का हो, बट प्रीवियस ईयर फिगर कंपलसरी एज पर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओह सर इसका आपने बोला ऑडिट का जो भी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो रिव्यू और चेक करेगा, तो उसका कोई फॉर्मेट है कि भाई किस हिसाब से हमें ऑडिट का प्रोसीजर या मैनुअल फॉलो करना चाहिए, मैं या फिर बता क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना मैं बता चाहिए उसका फॉर्मेट? मैं बता सर एक जो पॉलिसी आपने बताया ना कि सर की पॉलिसी चेक करेंगे पीयर रिव्यूअर, कि आपके हम्म, यहाँ ये सब पॉलिसी का आपने क्या पॉलिसी बनाया है इसको फॉलो करने के लिए, हम्म। वो पॉलिसी का भी एक कॉपी चाहिए होगा। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। दो हम्म, चीजें हो गई, एक आपका क्वेश्चन है कि पॉलिसी का क्वेश्चन, इसमें पीयर रिव्यूअर क्या क्या चेक करेगा उसे सर एक चीज समझ लीजिए। उसे आपके जो ये उसको रिपोर्ट इशू करनी है, हम्म, इस रिपोर्ट के एक एक क्वेश्चन के लिए उसे आंसर करना है। तो एक तो आपका जो क्वेश्चन है फॉर्म 1, उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर की सपोर्टिंग वो देखेगा, देखना चाहिए। दूसरी चीज क्योंकि उसे सर्टिफाई करना है, और दूसरी चीज इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर जो उसकी अपनी रिपोर्ट है उसका। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये वाला हैज द प्रैक्टिस यूनिट शेयर्ड क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल विद द रिपोर्ट, और जो ये क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल है ये इन कंप्लायंस विद प्रैक्टिस यूनिट अंडर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन SQC 1। तो जो आपकी पॉलिसी है, जो संजय जी का क्वेश्चन था, वो जो पॉलिसी, यहाँ पर दो पॉलिसी है, दो मैनुअल की बात हो रही है। वन इज QC मैनुअल, सेकंड इज ऑडिट मैनुअल। QC manual is a subset of audit manual. So audit manual comprises of 3-4 parts. पहला है आपकी ICAI की डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे आप सभी के पीछे किताबें रखी हुई हैं, ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स आपके यहाँ हैं, अच्छी बात है। ICAI की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ICAI के मटेरियल की एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये AQMM में साफ लिखा हुआ है। तो वो डिजिटल लाइब्रेरी एक आपके ऑडिट मैनुअल का पार्ट। दूसरा पार्ट है आपकी QC पॉलिसीज एज पर SQC 1। तीसरा पार्ट है आपके SOPs, जो आपका मिनिमम स्टैट्यूटरी एंड टैक्स ऑडिट आप कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से लेके फाइल क्लोज होने तक का, सिग्नेचर नहीं, फाइल क्लोज होने तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और फोर्थ पार्ट है इस SOP और QC पॉलिसीज, इन दोनों के जो इंप्लीमेंटेशन फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स का कंपाइलेशन। जैसे आपके यहाँ GST रिकंसिलेशन बनता होगा, आपके यहाँ ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, आपके यहाँ जितने भी स्टेप्स होते हैं ऑडिट में, उन सबके फॉर्मेट्स। तो ये पूरा जो कंपाइलेशन है ये है ऑडिट मैनुअल। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होने चाहिए जो आपके FRN लेवल पे, यानी कि अगर आपकी 4 ब्रांचेस हैं, चारों ऑफिसेज उन्हीं फॉर्मेट्स को यूज कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है 1 अप्रैल 2009 से, जिसकी अब एनफोर्समेंट अब देखी जा रही है पीयर रिव्यू। तो ये एक है, और इसमें ये है एनेक्चर 1। एनेक्चर 2 से मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल आइडिया दे देता हूँ कि वो किस लेवल तक देखते हैं या उन्हें किस लेवल की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली पीयर रिव्यूअर की भी मजबूरी है, प्रैक्टिकली उन्हें भी पता है फर्म में क्या हो रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। जैसे ये आपका एनेक्चर 2 है। अब एनेक्चर 2 में अगर आप देखेंगे, मैं दिखा, ये एनेक्चर 2 है। अब देखिए आपके PU के सिस्टम में इस टाइप की पॉलिसीज हैं क्या? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। फर्म में MRL, क्लाइंट से MRL लेने का सिस्टम है क्या? अब जब तक आप पीयर रिव्यूअर को MRL नहीं दिखाओगे, वो इसका आंसर यस कैसे करेगा? नो कर देगा, तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक कुछ ही क्वेश्चन स्पेसिफिक दिखा देता हूँ कि आपके यहाँ फर्म में ऑडिट स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट बनता है क्या? यहाँ एस्से वाइज रिपोर्टिंग करनी है, लिटरली एस्से वाइज रिपोर्टिंग है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और आप देखिए कि, एक क्वेश्चन और ये वाला देखिए आप, ऐसे 505 का क्वेश्चन है।
इसमें एक्सटर्नल बैलेंस कंफर्म, देखिए अब यहाँ पे फर्म ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स किए क्या? सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है कि बैलेंस कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी बैलेंस कंफर्मेशन किए क्या? डेटर्स के बैलेंस कंफर्मेशन का डॉक्यूमेंट लिया क्या? बैंक के बैलेंस सर्टिफिकेट्स लिए क्या? अब ये जो है आप समझिए एस्से वाइज रिपोर्टिंग है। अब पीयर रिव्यूअर अगर इसमें कहीं भी एडवर्स रिमार्क दे देगा तो फिर पीयर रिव्यू बोर्ड इंस्टीट्यूट, पीयर रिव्यू बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। और अगर उसने एक्चुअली में आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं है और पीयर रिव्यूअर ने यस लिख दिया तो पीयर रिव्यूअर फंसता है, क्योंकि पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन है 18 महीने तक इसके वर्किंग पेपर जो उसने पीयर रिव्यू में देखा, वो 18 महीने तक वर्किंग पेपर अपनी नोटिंग्स रखना, 18 महीने तक इंस्टीट्यूट उससे मांग सकता है। और पीछे देखा गया है पिछले 6-8 महीने से कि पीयर रिव्यूअर से सर्टिफिकेट इशू होने के बाद बोर्ड ने क्वेरीज मांगी है, उनके वर्किंग पेपर्स मांगे। तो पीयर रिव्यूअर्स प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो इसे एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली, और इसी के आगे एक कॉलम ऐड करते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सीन, और उसमें अपनी नोटिंग्स कर। तो पीयर रिव्यूअर क्या देखेगा, वो आपकी तीन चीजें सबसे मतलब सबसे स्पेसिफिक अगर आपको समझनी है तो ये तीन चीजें हो गई। आपके क्वेश्चनियर का सबमिशन फॉर एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 AQMM का। इसके अलावा अगर आपके अब इसी में आपके एचआर के रिकॉर्ड्स भी आ गए, मैं अभी आपको फॉर्म 1 एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपके एचआर के रिकॉर्ड्स भी आ गए, उसमें रिक्रूटमेंट के रिकॉर्ड्स भी आ गए, उसमें आपका सीपीई के रिकॉर्ड्स भी आ गए, उसमें आपकी ऑडिट फाइलें भी आ गई, उसमें आपके ऑडिट मैनुअल, आपके स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी। तो ये ब्रॉड चीजें मैं आपको ब्रॉडली एक बार बता रहा हूँ। और इसमें अगर हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि आपको सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट फिल करना है, तो इसमें यहां तक तो कुछ नहीं है खास। ये आपने एक बार भर दिया, मतलब ये बेसिक केवाईसी है, यहाँ साइन कर दिया, उसके बाद ये आपका एसएसपी पोर्टल से फिल हो जाता है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ लिखा है वेबसाइट, सर यहाँ नीचे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है, आपकी फर्म की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट एज पर आईसीआई गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो आपके सेल्फ सर्विस पोर्टल से बिल्कुल सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। पता चले ऐसा पीछे देखने में आया कि वहां पे 4 पार्टनर्स है, वेबसाइट पे 6 पार्टनर्स लिखे हुए हैं, वेबसाइट पे ऑफिस के एड्रेसेस अपडेट नहीं है और सेल्फ सर्विस पोर्टल पे कुछ और एड्रेस है, क्योंकि पीयर रिव्यूअर को इसके भी स्क्रीनशॉट रखने पड़ते हैं अपने रिकॉर्ड। इसके बाद आपका नेटवर्किंग फॉर्म अगर एप्लीकेबल है तो नेटवर्क आएगा। पीरियड अंडर रिव्यू में वही 3 साल आएंगे जो मैंने आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए आप आज अप्लाई करते हैं तो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 24। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन फर्म का कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टनर कोई भी इसमें हो सकता है, जरूरी नहीं पार्टनर ही हो। इसके बाद ये आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल से फिल हो जाता है। इसमें ये समझ लीजिए सारे पार्टनर्स की डिटेल आती है जो उन 3 सालों में पार्टनर थे, चाहे वो एज ऑन डेट है या नहीं, सारे पार्टनर्स की डिटेल फिल होती है। यहाँ पर डिटेल फिल होती है सिर्फ 31 मार्च की, यानी कि 31 मार्च 24। यहाँ पर भी केवल डिटेल्स फिल होती है 31 मार्च 24 की, जो लास्ट डेट ऑफ द ब्लॉक पीरियड है। यहाँ पर आपके जितने ब्रांच ऑफिसेज उन 3 सालों में रहे उनकी डिटेल फिल होती है, चाहे उससे कोई भी ऑडिट का काम होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं है, डिटेल यहाँ फिल होती है और यहाँ पर यस और नो का उस चीज का जवाब आ जाता है। फिर अब ये क्वेश्चन देखिए, हाउ इज कंट्रोल प्रोसीजर फॉलोड बाय ब्रांचेस। अब ये एचओ आंसर कर रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिस की, हमारे एफआरएन की जो 5 ब्रांचेस हैं वहां पर हम कैसा कंट्रोल प्रोसीजर एक्सरसाइज करते हैं, और हम क्या वहां पे पीरियोडिकल सैंपल टेस्टिंग होती है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपका हेड ऑफिस है मुंबई में और ब्रांच ऑफिस है आपका जमशेदपुर में, वडोदरा में, बांसवाड़ा में, चेन्नई में, तो मुंबई ऑफिस ये आंसर कर रहा है क्योंकि एप्लीकेशन तो एचओ लेवल पे आ रही है, एफआरएन की एप्लीकेशन आ रही है, तो मुंबई ऑफिस को ये आंसर करना है कि भाई हमारी जो ये 4 ब्रांचेस हैं हम उनके क्यूए ऑडिट का सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं क्या। अब ये रिक्वायरमेंट कहां पर है, ये रिक्वायरमेंट SQC 1 में, ये रिक्वायरमेंट आईसीआई की नहीं है, मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड की नहीं है,
ये रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2009 से एनुअली चेक करने की रिक्वायरमेंट है एसक्यूसी 1। तो ये जो पूरा पीयर रिव्यू है ना, ये बेसिकली पीयर रिव्यू फाइलों का नहीं है, ये पीयर रिव्यू है एसक्यूसी 1 का। ये पूरा एसक्यूसी 1 की इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू है बेसिक, और मैं भी आपको दिखा भी दूंगा लिखा हुआ। इसके बाद है आपकी फर्म की ग्रॉस रिसीट। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो केवल जो अटेस्टेशन से ग्रॉस रिसीट है वो यहाँ लिख सकते हैं, या आप चाहें तो जो आपकी बैलेंस शीट में टर्नओवर आ रही है वो आप यहाँ लिख दीजिए, जो आपकी चॉइस सूट करे आपको। उसके बाद इसी हिसाब से पीयर रिव्यूअर की फीस कैलकुलेट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीयर रिव्यूअर की फीस कितनी है। मिनिमम फीस है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पीयर रिव्यूअर की मिनिमम फीस। ये आपकी फर्म की टर्नओवर पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फर्म का एवरेज टर्नओवर इन द लास्ट 3 years अप टू 10 lakhs है या अप टू 50 lakhs है, जो भी है उस हिसाब से ये फीस है मिनिमम फीस प्लस टीएटी। टीएटी एडिशनल है और ये मिनिमम फीस। अगर आपके केस में स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज है तो आपके केस में फीस ये हो जाती है मिनिमम। और अगर आपके केस में एक्यूएमएम एप्लीकेबल हो जाता है तो एक्यूएमएम के केस में ये एडिशनल, तो आपकी ये फीस पड़ती है जो मिनिमम फीस है प्लस टीएटी इफ एप्लीकेबल, नेचुरली इफ एप्लीकेबल। ये पर ये फीस एवरी ईयर है कि फीस 3 सालों का जो रिव्यू होगा पूरा मिला के तीनों साल का एक फीस है ये? 3 साल की वन टाइम पेमेंट है। अच्छा, ये 25,000 जो लगेगा 3 साल का ही, मतलब तीनों साल के लिए अलग अलग नहीं है, एक सिंगल फीस लगेगा 25,000। सिंगल फीस 25,000 लगेगा, 3 साल का एक बार रिव्यू होगा और 25,000 हाँ। ऐसे। और ये टर्नओवर पीआर 5 साल का देखना होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर? सर टर्नओवर तो लास्ट के 3 जो पीरियड अंडर रिव्यू है ना सर, उन हाँ, 3 सालों का एवरेज, तीनों में वेरी कर रहा है, किसी में 10 लाख है, किसी में 40 है, किसी में 70 है। एवरेज करेंगे। तीनों का एवरेज। वो एवरेज टर्नओवर करेंगे उसका। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपकी पीयर रिव्यू फीस है मिनिमम। इसके बाद आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये है अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, ये मैं आपको यहां से लिंक करता हूँ, ये अभी समझाता हूँ सर। ये कंसंट्रेशन वाला पॉइंट एक बार क्लाइंट लिस्ट पर आएंगे तब मैं समझाऊंगा, तभी ये समझ में आएगा। ये डिजिटल कॉम्पिटेंसी मैच्योरिटी मॉडल है डीसीएमएम, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल। ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है। अगर आपने किया है तो यस लिखिए, नहीं किया है तो इग्नोर कीजिए। इसका कोई एडवर्स इम्प्लीकेशन एज ऑन डेट नहीं है। अब इसके बाद ये सब आपके बेसिक केवाईसी है। अगर टेंडर से आपका कोई असाइनमेंट आया है तो आप यहाँ पर यस लिखिए। टेंडरिंग से बैंक ऑडिट की एम्पैनलमेंट एमईएम सीएच, टेंडरिंग नहीं है। अगर टेंडरिंग से आया तो आप यहाँ यस लिखिए। अब ये है क्लाइंट लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पीयर रिव्यू में कुछ भी करना चाहते हैं, पीयर रिव्यू अगर अपनी फर्म का कराना चाहते हैं, ये पहला स्टेप। क्यूसी पॉलिसी क्या जाना है, कहाँ क्या जाना है, वो सब बात की बातें हैं। पहला स्टेप है ये आपका क्लाइंट लिस्ट। इसमें करना क्या, आप ध्यान से समझ लीजिए। इसे आप एक्सेल में बनाइएगा। एक्सेल में इसमें 2 कॉलम ऐड कीजिएगा, यूडीआईएन और फीस। 2 कॉलम ऐड कीजिएगा एक्सेल में। और ये जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर इस कॉलम को ऐड कीजिएगा और उसमें लिखिएगा साइनिंग डेट फॉलिंग इन फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये इसमें 3 एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद ये क्लाइंट लिस्ट बनाए। इंस्टीट्यूट में आपको वो 2 कॉलम नहीं देने, वो आपको पीयर रिव्यूअर जब आता है या जब आपसे वो मांगता है पीयर रिव्यूअर को आपको तब देने। इंस्टीट्यूट को नहीं देने यूडीआईएन और फीस की डिटेल। इंस्टीट्यूट को तो आपको इतना ही देना है, लेकिन बनाइएगा उसको, क्योंकि देना तो है ही अल्टीमेटली। इसके बाद आपको कैसे फिल करना है, हर यूडीआईएन मैंने आपको बता दिया, पोर्टल से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी ऑफ क्लाइंट, नेम और कोड ऑफ क्लाइंट। तो आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो एक कोड नाम के साथ एक कोड की लिस्ट बना के आप यहाँ कोड भी दे सकते हैं। ब्रांच और एचओ ऑफ पीयू, यहाँ पीयू मतलब प्रैक्टिस यूनिट, आपको सीए फर्म की कौन सी ब्रांच ने वो काम करा है वो देना है। मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
आपका ऑफिस है भोपाल में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट आया आपका दिल्ली का, तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली नहीं लिखना, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भोपाल लिखना है, जिस ऑफिस ने आपके वो काम करा है। हाँ उसके सर, बाद है कई साइनिंग पार्टनर का नाम। कई फिर कई जगह पे ऐसा है, जैसे मेरे केस में इंस्टीट्यूट परमिट करता है कि प्रोप्राइटर को विद इन 50 किलोमीटर में एडिशनल ऑफिस रख सकते हैं, तो एडिशनल ऑफिस से ही मेजर काम होता है। सेकंड ऑफिस लिख दीजिए ना, हाँ चलेगा ना। वरना एचओ लिख दीजिए। उसके बाद है साइनिंग पार्टनर का नाम, फिर है टाइप ऑफ एंगेजमेंट। अब जो मैंने टाइप ऑफ एंगेजमेंट बताई थी वो सारी, और ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट में हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट अलग अलग लिखनी है, और ध्यान से देख कर लिखिएगा, क्योंकि सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट का मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। तो जो आप यहाँ लिखेंगे ध्यान से लिखिए, जैसे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट एक अलग एंगेजमेंट है, स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट्स अलग एंगेजमेंट है, टैक्स ऑडिट अलग एंगेजमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग एंगेजमेंट है, सर्टिफिकेशन अलग एंगेजमेंट है, इंटरनल ऑडिट एक अलग एंगेजमेंट है। ये सभी अलग अलग एंगेजमेंट। आप सर्टिफिकेशन किसी भी नेचर का है, चाहे वो 3 CSE है, टर्नओवर सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, उसे आप खाली सर्टिफिकेशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट चाहे कंपनीज एक्ट का है, चाहे एलएलपी एक्ट का है, चाहे इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है, आप उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर जो जो अलग अलग नाम लिखेंगे, उन सभी नामों का मिनिमम एक क्लाइंट पीयर रिव्यूअर को पिक करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। वो सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, वो ये लिखा, ये रहा सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें कई चीजें लिखी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आप मैच कर लीजिएगा, मैं इसलिए आपको एनीवे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो आपको एक तो मिनिमम एक एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट का मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। उसके बाद यहां पर लिखा है EQCR। EQCR आपका डिफाइंड है अगेन SQC 1 में। लेमन लैंग्वेज में समझें, बहुत लेमन बता रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक वहां लिखा है। EQCR मैंडेटरी है केवल और केवल एज ऑन डेट मैंडेटरी है ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के केस। बाकी केस में जो प्रेफरेबल है वो है ऑडिट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की डेफिनेशन। इसके अलावा सब जगह रिकमेंडेटरी है, तो आप ब्लाइंडली यस मत लिखिए, जहां मैंडेटरी है वहां यस, या जहां आप अपने बता रखे, जैसे कुछ फर्में क्या करती है कि अगर 100 CR से ऊपर का टर्नओवर का क्लाइंट होगा, हम EQCR करेंगे, आप वो कर लीजिए, वो लिख दीजिए क्राइटेरिया। उसके बाद टर्नओवर, बोरोइंग्स और नेटवर्क, ये आपको हर यूटीआई की फिल वेर एवर एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट के केस में तीनों फिगर होंगे, पर जीएसटी ऑडिट के केस में सिर्फ टर्नओवर होगा। सर्टिफिकेट के केस में क्या पता तीनों ही फिगर एप्लीकेबल ना हो, मान लीजिए 15 CSE भी दिया है तो तीनों फिगर एप्लीकेबल हो। अगर आपने मान लीजिए टर्नओवर सर्टिफिकेट दिया तो खाली टर्नओवर एप्लीकेबल होगी। सो वेर एवर वट एवर एप्लीकेबल। इसके बाद यूडीएन लिखा भाई आपने, क्योंकि यूडीएन से प्लॉटिंग चल रही है, और हर यूडीएन की फीस। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो बात चल रही थी सैंपल सिलेक्शन की, तो पार्ट आप सी प्रियर रिव्यूअर को मिनिमम एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट का, हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट का मिनिमम एक सैंपल पिक करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज, हर साइनिंग पार्टनर का मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। हर ऑफिस का मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। हाईएस्ट टर्नओवर क्लाइंट का स्टैट्यूटरी ऑडिट पिक करना मैंडेटरी है। हर कैटेगरी का, यानी कि जैसे यहाँ कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, जहां भी आप अपने क्लाइंट्स की इस कैटेगरीज में प्लॉट कर रहे हैं, हर कैटेगरी का मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। तो ये टेबल थी, इस टेबल में आप जो क्लाइंट के नाम लिख रहे हो, उन क्लाइंट में से मिनिमम एक क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी है। तो सैंपल मोर और लेस ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होता है, जो आईसीआई की गाइडलाइंस है उस हिसाब से। तो आपको लगे भी फिर अगर आपका जानने वाला है सैंपल तो हम ही पिक करवाएंगे, कुछ भी उठा लेगा, ऐसा नहीं है सर। मैंडेटरी सैंपल गाइडलाइंस को फुलफिल करना ही पड़ेगा। और ओवरऑल इररिस्पेक्टिव आपके कितने असाइनमेंट्स हैं, मिनिमम 10 क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी, ये लिखा। अगर आपकी फर्म की टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 10 क्लाइंट पिक करना मैंडेटरी, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ रही है इतने क्लाइंट्स पिक करना मैंडेटरी।
सो इसमें टैक्स ऑडिट में 10 क्लाइंट पिक करना के सर्टिफिकेट वाइज 10 क्लाइंट पिक करना? ओवरऑल। ओवरऑल मिनिमम 10 लेना है, हाँ 10 जी, से ज्यादा ले सकते हो लोग। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सर्टिफिकेट वाइज मान लो आपने कैटेगरी वाइज बताया था, उसमें से मिनिमम एक तो होगा ही। हाँ जी, हाँ जी। सर आप कोई ऐसा फॉर्मेट बता सकते हो कि भाई हमें क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि क्या कभी सारे एज अ सीए हम मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। मान लो आपने बोला क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल या ऑडिट मैन्युअल, तो क्या डॉक्यूमेंट क्लाइंट के पास से लेना चाहिए, क्या हमें रखना चाहिए, वो मैं डिटेल। बता देता हूँ सर। देखिए, जो आपको ऑडिट के लिए चाहिए, स्टैट्यूटरी या टैक्स ऑडिट के लिए, वो यहाँ पर लिखा है पीयर रिव्यू मैनुअल। पीयर रिव्यू मैनुअल वॉल्यूम 1 में आपका डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है। उसमें SA 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, उसे बहुत खूबसूरती से समराइज कर दिया है। इसमें साफ लिखा है परमानेंट फाइल, परमानेंट फाइल में ये 10 चीज होने चाहिए, करंट फाइल उसमें ये 10 चीज होनी चाहिए। तो पीयर रिव्यू मैनुअल वॉल्यूम 1 आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में वो मिल जाएगा। ब्रॉडली अगर मैं बताऊं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर से चीजें शुरू होती हैं, तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स में आपका एंगेजमेंट लेटर हो गया, आपका कंसेंट लेटर हो गया कंपनीज के केस में, आपका ADT 1 हो गया कंपनीज के केस में, आपका एंगेजमेंट लेटर, कंसेंट लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, आपका इसके अलावा प्रीवियस ऑर्डर कम्युनिकेशन, और इसके अलावा आपके प्रोसीजर्स, प्रोसीजर की फाइल। प्रोसीजर्स का एक फॉर्म हो सकता है कि आपने ये प्रोसीजर करें। क्लाइंट एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट, क्लाइंट एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे SQC 1 की इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ गिवन है। जो भी आपके फॉर्मेट्स है ना सर, वो सारे फॉर्मेट्स या तो गिवन है रिस्पेक्टिव एसए में, या एसए की इम्प्लीमेंटेशन गाइड में, वहां सारे फॉर्मेट्स गिवन है। जैसे ये आपका SQC 1 है, और अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड की बात करूं जिसमें ये गिवन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये रही इम्प्लीमेंटेशन गाइड टू SQC 1। इसमें आपके सारे फॉर्मेट्स हैं। इसमें कई फॉर्मेट्स आपके वो दिखा देता हूं मैं, जो आपको पीयर रिव्यू में जरूरत पड़ेगी। और ये रेफरेंसेस सारे आपके क्वेश्चन में भी आपकी ये रही। आपको जैसे जैसे आपकी क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन फॉर्म, वो ये रहा, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी हुई है, ये लिख, मैं आपको दिखा। जैसे हम यहाँ थे, डज द PU मेंटेन क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन फॉर्म, वो ये लिखा, ये रहा वो फॉर्म, क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन फॉर्म। तो ये फॉर्म अगर आपने बना रखा है, या ऐसा ही कोई फॉर्मेट बना रखा है, जरूरी नहीं वही बनाना है, वैसा बना रखा है, तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद आपकी ऑडिटिंग कंपोजिशन, ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट SC 300 के हिसाब से, उसके बाद आपके बैलेंस शीट P&L आइटम वाइज या ऑडिट चेकलिस्ट के हिसाब से, डिटेल ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट चेकलिस्ट, उसके हिसाब से एक एक एक्टिविटी का सपोर्टिंग, या एक एक बैलेंस शीट और P&L आइटम वाइज सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। फिर आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में आ गया क्वेरीज की, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैनेजमेंट के क्या रिप्लाई है, और उसके बाद आपके सेटिस्फेक्शन रिमार्क या क्लोजर रिमार्क्स। उसके बिना रिपोर्ट इशू नहीं हो सकती, ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद आपके फिर MRL मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसके बाद आपका फाइनेंशियल्स की कॉपी, इफ एप्लीकेबल, जैसे GST ऑडिट में फाइनेंशियल कॉपी हो तो अच्छी बात है, लेते ही है ना, पर सर्टिफिकेट में नहीं लेते। तो फाइनेंशियल्स की कॉपी, फाइनेंशियल्स की कॉपी के बाद आपकी ऑडिट, ये मोटे तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो आप पॉलिसीज कह रहे थे, पॉलिसीज ये रही। तो पॉलिसीज में आपके ये जो इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, इसमें ये 5 एलिमेंट है। इन्हीं पांचों एलिमेंट के टेम्पलेट फॉर्मेट्स यहाँ पे टेम्पलेट पॉलिसीज गिवन है। जैसे मैं आपको दिखा, ये देखिए, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, तो ये टेम्पलेट पॉलिसीज गिवन है। प्लस आपको यहाँ पर एक यहाँ पर गिवन है, प्लस सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी में एक QC मैनुअल की टेम्पलेट गिवन है। आपको दोनों में से जो सूट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनवा लीजिए अपने ऑफिस का, ये आपका ऑफिस का डॉक्यूमेंट। तो जो संजय जी का भी क्वेश्चन था कि ये टेम्पलेट QC मैनुअल जो है, ऑडिट मैनुअल नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसीज का पार्ट,
वो आपको यहाँ से या सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी की वेबसाइट से मिल जाए। इसके बाद इसी तरह कौशिक जी यही पूछ रहे थे आप? यही पूछना था उनका। हम्म। अब इसके बाद हम जहां पर थे ओरिजिनली वो एक बार कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से भी मिनिमम एक सैंपल पिक होना है। ये आप जरा समझ लीजिए, जो नीचे आपने क्लाइंट लिस्ट लिखी है, केवल उन क्लाइंट्स के नाम में से अगर किसी क्लाइंट से आपकी बैलेंस शीट के टर्नओवर का 15% से ज्यादा रेवेन्यू आया है तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना। दोबारा सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके 10 क्लाइंट, या मान लीजिए आपके 100 क्लाइंट, 100 में से 100 क्लाइंट में आपकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के भी हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के भी हैं, हर तरीके के क्लाइंट है। उसमें से केवल 80 क्लाइंट के नाम आए ऑडिट वाली लिस्ट में, जो नीचे अटेस्टेशन की लिस्ट दी है। किसी का सर्टिफिकेट इशू है, किसी का कुछ इशू हुआ। अब कोई ऐसा क्लाइंट है, तो जो 80 क्लाइंट है कि उस 80 में से अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसकी ऑडिट और नॉन ऑडिट यानी कि एश्योरेंस नॉन एश्योरेंस सर्विस की फीस मिला के आपकी फर्म की टोटल बैलेंस शीट टोटल टर्नओवर का 15% से एक्सीड हो रहा है, तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी बैलेंस आपकी फर्म की टर्नओवर है 50 लाख। 50 लाख का आपका 15% हो गया करीबन 7.5 लाख रुपए। ठीक है, 7.5 लाख हो गया ना। हाँ, 7.5 लाख हो गया। अब आपका अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट है जिसकी आप केवल लिटिगेशन कर और कोई सर्टिफिकेट तक का काम नहीं कर रहे, तो उसका तो नाम यहाँ आएगा ही नहीं। अगर आप उससे 10 लाख रुपए भी ले रहे हो तो उसका तो नाम यहाँ आएगा ही। अगर आपका कोई क्लाइंट का नाम है जो 80 नीचे आपने नाम दिया है, उस लिस्ट में जो नाम दिए हैं उसमें से कोई क्लाइंट है जिसका आपने एक सर्टिफिकेट इशू करा और आप उसका लिटिगेशन का बहुत काम कर, तो उस सर्टिफिकेट के पैसे तो 2,000 रुपए है, लेकिन लिटिगेशन या नॉन ऑडिट सारी अटेस्टेशन सर्विसेज की बिलिंग आपकी है 8 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पे उस क्लाइंट का नाम लिखना है, इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस लिखना है, और यहाँ पे टोटल फर्म की टर्नओवर, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए आ रहे हैं आपसे, तो आपको यहाँ पे 20% लिख के फाइनेंशियल ईयर में, और जितने नाम आप यहाँ लिखोगे उनमें से एटलीस्ट एक क्लाइंट आपके सैंपल में पिक होना मैंडेटरी। सर एक सवाल है यहाँ पर। हाँ बताइए। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ क्लाइंट ग्रुप, सपोज कि एक क्लाइंट है, उसके 5-7 कंपनियां हैं और भी कई तरह के फर्म्स है, सबका मिला करके ऑडिट यदि हम लोग करते हैं तो ग्रुप का फीस तो 15% से ज्यादा हो जाता है, परंतु सिंगल फाइल का नहीं होता है। तो सिंगल है पर यहाँ यहाँ पे सिंगल आएगा कि वो ग्रुप आएगा? सिंगल सिंगल यहाँ सिंगल पर आएगा ना। सिंगल आएगा। जो आपकी कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट है 40% वाली और 20% वाली, एक कोड ऑफ एथिक्स में अलग लिमिट है। अच्छा। वहां पे जो पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक पीआई यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में 20, बाकी केस में 40, वहां पे ग्रुप है। वहाँ ग्रुप कंपनीज आएगी। हाँ जी, वहां ग्रुप है, यहाँ पर सिंगल क्लाइंट है। सिंगल क्लाइंट है। ठीक। सर आपने जो एसक्यूसी वाला जो फॉर्मेट अभी जो दिखाया था ना, वो पाथ एक बार दिखा दीजिए ना। है ना सर, एसक्यूसी 1 वाला हाँ पाथ। अच्छा पाथ मैं बताया तो पाथ यहाँ से है सर, पाथ उसके है ये रहा। इसमें आप देखिए, ICAI.org पे जाके नॉन स्टैंडिंग पे जाके ऑडिटिंग एश्योरेंस बोर्ड, ओके। ऑडिट एश्योरेंस बोर्ड में सबसे नीचे अदर टेक्निकल लिटरेचर ऑन ऑडिटिंग, और अदर टेक्निकल लिटरेचर में जाके आप यहाँ पे कंट्रोल F करके एसक्यूसी देख लीजिएगा। ये रहा सेकंड लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन गाइड टू एसक्यूसी। ये इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, स्टैंडर्ड नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। सर कहाँ गए एक बार कमिटीज में गए उसके बाद? सर ऑडिटिंग एश्योरेंस बोर्ड, ऑडिट एश्योरेंस बोर्ड में बॉटम राइट कॉर्नर पे एक है अदर टेक्निकल लिटरेचर। ओके। हाँ, इसमें आप सेकंड लास्ट लिंक है ये, इम्प्लीमेंटेशन गाइड टू एसक्यूसी। ओके। ठीक है ना सर? थैंक यू।